Hope the screen is visible to everyone. Yes. Okay. Okay. So in previous class, that will be we have studied about circular convolution, or I can say rotation of signals. ठीक है. Now we already discussed the method of calculate the convolution using circular convolution. Okay. Now like your linear convolution, there was a part matrix method to verify whether your convolution is right or wrong. So in case of your circular convolution also, there is an alternate method, and that method is known as matrix method. Matrix method. Wait, just a minute. Okay, matrix method. And in matrix method, this is the shortcut method to verify whether your calculated circular convolution is right or wrong. Okay, so I suggest you that you will use that matrix method. एक मिनट रुको, टीचमेंट में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चालू की है कि नहीं एक बार देख लेते हैं. हाँ, ठीक. So again, I am saying that the matrix method you will use if and only if the question is of less than 2 marks. That is 1 or 2 marks का अगर question है, then you can use your matrix method. Otherwise, I suggest it is not a very good option to use that matrix method to calculate the circular convolution. Okay. So now in that case, linear convolution में हम लोग क्या करते थे? We are taking this kind of matrix. यहाँ पे तुम्हारा x1n x2n ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट को लिखते थे. दैट इज यहाँ पे x1 का एलिमेंट, यहाँ पे x2 का एलिमेंट. नाउ वी आर जस्ट डू दिस कैलकुलेशन. ओके. सो नाउ इन दिस केस मैट्रिक्स मेथड, ये मैट्रिक्स मेथड में भी सेम होगा, बट रोटेशन, सिंस डीएफटी में देयर इज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफटी, दैट rotation property is there. So in matrix method also we will use the rotation. And to verify or to give the example, I will take the previous example so that simultaneously we can verify whether our circular convolution which we had solved in previous class, whether it is right or wrong, or we just verify this. So before going to give you the example, I will go to the last class and take the example. So in last class we have taken the example of this. I will take this example from the last class. Okay, so this is the example. Now we will do the matrix method. I will do the convolution, circular convolution using matrix method. So now method for calculation of circular convolution using matrix method. Okay, so now first step, we will go for step to step procedure. First step, like your
सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन पहला स्टेप में हम क्या करते थे? सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में लास्ट क्लास में पहला स्टेप क्या था? टेल मी। मार्किंग करते हैं दैट इज एलिमेंट्स का सर्कल में। नहीं, सर्कल में मैपिंग करने से, मार्किंग करने से पहले क्या करते थे हम? दोनों सीक्वेंस का लेंथ जो है, वी हैव टू कन्वर्ट द लेंथ ऑफ ईच सीक्वेंस इक्वल। दैट इज x1 में लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5। x2 का लेंथ क्या है? 1 2 3। so we will make the length of both the sequence equal. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1, make the length of sequence for all functions equal. ओके, सो नाउ यहां पे देखो x1 का लेंथ कितना है? 1 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1। ठीक है, नाउ लेंथ इक्वल टू 5। x2 n 1 2 3, दैट इज लेंथ इक्वल टू 3। सो ये तो तुम्हारा इक्वल लेंथ नहीं है, तो इसको इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे? जो लेंथ मैक्सिमम है, ठीक है, उससे हम कुछ लेंथ घटा नहीं सकते। ठीक है, सो वी विल जस्ट ऐड द सीक्वेंस और ऐड द वेरिएबल टू द सीक्वेंस हैविंग लेस लो लेंथ और लेस लेंथ देन योर हायर लेंथ। ओके, सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये सबसे कम लेंथ है, तो इसको हम नाउ इंक्रीज करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे पहले सीक्वेंस के लेंथ से। सो 1 2 3 पहले लिख रहे हैं। कितना वेरिएबल का शॉर्टेज है? 2 वेरिएबल का शॉर्टेज है, तो वी विल ऐड 2 वेरिएबल्स, दैट इज 0। ठीक है, सो दैट विल गिव यू इक्वल लेंथ। नाउ इसका लेंथ क्या हो गया? 5 हो गया। नाउ इसका भी लेंथ 5 हो गया, तो 5 एंड 5 बोथ द लेंथ्स विल बी इक्वल। Now we have to create the matrix. Okay, and how to create the matrix? So we will create the matrix by taking two sequences. That is, first matrix consists the sequence for x2n, and second matrix will consist the sequence of x1n, and whatever the multiplication, that will give you xn, that is, or instead of xn I will write yn, y matrix. ठीक है, so this is how we will create the matrix. So now x1 x2n को लेंगे, so ये लेने का भी एक प्रोसीजर है। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? जो x1 x2n है उसको हम लोग कॉलम वाइज ले लेंगे। ठीक है, एक मिनट। कॉलम वाइज ले लेंगे। सो यहाँ पे कॉलम वाइज अगर लेंगे तो ये क्या होगा? x2 0, x2 1, x2 3 2, x2 3, x2 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे? रोटेशन है, तो इसको रोटेट करके नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, that is x2 4. Now write the rest of the element 0, फिर 0 1, x2 1, x2 2, x2 3। नेक्स्ट रोटेशन में क्या करेंगे? 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, सो x2 3। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको इसके नीचे लिख देंगे, तो x2 0, x2 1, x2 2, 0 1 2, सॉरी ये 4 होगा, 4 0, and that will be
x1 एंड x2 2। अगेन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे x2 2, x2 3, x2 4, x2 0, x2 1। नाउ क्वेश्चन इज अप टू व्हिच, इस एक्सटेंट तक जाएंगे जब तक मेरा लास्ट एलिमेंट, ठीक है, लाइक यहां पे मैं जा रहा हूं, फिर यहां पे क्या होगा, x1 को लेके जाएंगे, x2 1, x2 2, x2 3, x2 4 एंड x2 0। जब तक मेरा लास्ट एलिमेंट है जो कॉलम का, वो मेरा पहला जो कॉलम है उसका फर्स्ट एलिमेंट ना हो, तब तक हम इसको रोटेट करवाएंगे। यहां पे देखो, इस कॉलम का लास्ट एलिमेंट क्या है, पहला कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। सो नाउ वी विल स्टॉप, ठीक है, नाउ वी विल क्लोज द मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, x1 मैट्रिक्स। x1 को सिंपली हम लोग x1 0, x1 1, x2 2, x2 3, x2 4 सिंपली लिखेंगे, ठीक है। एंड व्हाट एवर द रिजल्ट, दैट विल बी योर y matrix, and y matrix can be written as that is equal to y0, y1, y2, y3, y4, ठीक है। तो इट विल लुक लाइक दिस, ओके। सो यहां तक समझ में आया कैसे हम लोग लेंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स को कैसे अरेंज करेंगे, समझ में आया, यस और नो? हेलो, sir. ओके, Yes, sir. ओके। नाउ वी विल नाउ कैलकुलेट विद द वैल्यूज, ठीक है। तो अगेन वैल्यू को लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग x1 और x2 का वैल्यू को लिख लेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। x1 in is 1 minus 1 minus 2 3 minus 1 and x2n equal to 1 2 3 0 0। okay, now we will just plot the matrix. So first matrix consists of x2 element, that is 1 2 3 0 0। now in this case, next step, 0 will come to the first position, 0 will come to the first position, so 0 1 2 3 0। again that 0 will come to the first position, so 0 0 1 2 3। again this 3 will come to the first position, so 3 0 0 1 2। now again that 2 2 3 0 0 1। नाउ देखो, इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। इस कॉलम का लास्ट एलिमेंट क्या है, 1। सो नाउ वी विल स्टॉप, नो नीड टू गो फॉर फर्दर रोटेशन। एंड एक्स एंड दैट मैट्रिक्स, तुम्हारे डिजिटल पैड में एक ही प्रॉब्लम है, स्ट्रेट लाइन में दिक्कत होता है। तो दैट इज x1 का एलिमेंट 1 -1 -2 3 -1। ठीक है। सो नाउ we will do the multiplication, okay। so 1 6 6 plus minus
Now we will do the simply multiplication. So now first जो ये रो है, फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. So what we will get? 1 into 1, that is 1, plus 0 0, though that is 0 0, that is cancel out. 3 multiplied with 3, 9, minus 2 multiplied with minus 2. Okay. Now second रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, that is 2 multiplied with 2, plus that 1 will multiplied with minus 1, which will give you minus 1. So minus 1, next 0 0 0 0, and 3 multiplied with minus 1, तो minus 3. Now third row को multiplication करेंगे, that is 3, 2 multiplied with minus 1, which will give you minus 2, then 1 multiplied with minus 2, which will also give you minus 2, then 2 0 0 0 0. So no need to calculate. फोर्थ रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ. सो 0 minus 3 minus 4, that is 1, that is 3, plus 3, and that is 0. ठीक है. Now tell me what will be the procedure to multiply the last row with the column. कितना आएगा? minus 6 plus 6 minus 1. ठीक है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया सबको? Sir. Okay. Now write down what will be the value of each column, sorry, each row or column elements of the output matrix. That is, first one is, first element of the column is 10 minus 2, that is 8, that is 2 minus 4, that is minus 2, that is 3, sorry, 4, 3 minus 4, that is minus 1, minus 4, and that is minus 1. So this is the output matrix. So now we will move to the previous class example. यहाँ पे मेरा पहला एलिमेंट क्या कितना रहा था? देखो, x of 3 minus 1. So यहाँ पे भी मेरा minus 1. x of 3, that is third element. So third element 1 2 3, third element minus 1. Now x of second, that is 1, that is minus 2, that is the second element, and first element will be your first element कितना आया था? 8. So 8 minus 2 minus 1. ठीक है. So यहाँ पे देखो 8 minus 2 minus 1, and rest of two elements were your assignment, was your assignment. So that value will come minus 4 and minus 1. So matrix method is only, you will use matrix method, you can only use in case of MCQs. ठीक है. In comparative exam where your details part will not necessary, where you will deal with your answer only. ठीक है. वहां पे तुम आग बंद करके मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हो, चाहे वो लीनियर कन्वोल्यूशन हो या चाहे वो सर्कुलर कन्वोल्यूशन हो. ठीक है. तो यहां तक हो गया मेरा सर्कुलर कन्वोल्यूशन का टोटल पार्ट. ठीक है. नाउ आई विल गिव यू एन असाइनमेंट. सो बिफोर असाइनमेंट मैं तुम लोगों को एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ. ठीक है. उसको सॉल्व करके मुझे सिर्फ आंसर बताओ यूजिंग सर्कुलर मैट्रिक्स मेथड. ठीक है. And the assignment is you have to calculate the convolution, circular convolution using your rotation method. Okay. So find the circular convolution of two sequences like x1
n equal to 1 2 2 1 x 2n equal to 1 2 3 1. नाउ मैट्रिक्स मेथड में सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन निकालो. सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन दैट इज y ऑफ n. कितना आएगा क्विक बताओ. मैट्रिक्स मेथड हाथ में अगर कॉपी पेन है, नहीं है तो लो, क्विक ये कैलकुलेशन बताओ. आई विल गिव यू 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स. अभी 11:34 बज रहा है. 11:36 में यू विल गिव द आंसर, एनी वन ऑफ यू. ठीक है, just raise your hand. I will call you and I will ask you the answer. So I am giving you 2 minutes. After completion, you just raise your hand. And I will ask you. I will call the name. इलेवन 36 में I will. Okay. एक का कंप्लीट हुआ. बाकी होगा. Using matrix method, हाँ, not rotation method. एक का कंप्लीट हो गया. As he has raised his hand, so I can conclude that Ketan already done the problem. ठीक है, बाकी का ओके. बाकी किस किस का हुआ ये प्रॉब्लम? कोई नहीं है. दैट मीन्स ओनली वन स्टूडेंट्स हैज अंडरस्टूड द मेथड. संदीप, आर यू देयर? संदीप, अनम्यूट योरसेल्फ. आर यू देयर? यस सर. हुआ तुम्हारा, हुआ मैट्रिक्स मेथड में? नहीं सर, कर रहे हैं. ठीक है, चलो और 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए. किस किस का वैल्यू 11 9 10 और 12 आया? रेज योर हैंड ऑनेस्टली. हाँ, ये नहीं कि बिना किए हुए हैंड रेज किए. 11 9 10 और सॉरी 12 नहीं, 13 आया. जिसका 11 9 10 और 13 नहीं आया वो हाथ रेज करो. पहले मैं बोल रहा हूं किस किस का 11 9 10 और 13 आया. रेज योर हैंड. ओके, नाउ जिसका 11 9 10 और 13 नहीं आया, रेज योर हैंड. बाकी सबका 11 9 10 13 आया.
No, sir. कितना आया? 11, 11, 10, 12. 11, 11, 10, 12. Okay. So the correct answer is 11, 9, 10, 12. आई होप ये आंसर जिसका 11, 9, 10, 13 नहीं आया उनका 11, 9, 10 और 12 आया होगा आंसर। ठीक है, नाउ वी विल डू द मैट्रिक्स मेथड। दैट इज x2 को हम लेंगे, दैट इज 1 2 3 1 1 1 2 3 3 2 1 1 एंड सॉरी 3 सॉरी यहाँ पे 3 1 1 2 एंड 2 3 1 1। ठीक है, तो देखो यहाँ का लास्ट एलिमेंट इसका, ये इसका लास्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे। नाउ ये आ जाएगा 1 2 2 1। नाउ द वैल्यू विल बिकम multiplication of first row with the column, that is 1 plus 2 plus 4 plus 2, sorry 1 2 6, that will be 6 and 2. Next is 2 plus 2 plus 2 plus 6, एक मिनट, 2 2 2 plus 3, that will be 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। 3 plus 4 plus 2 plus 1। now 1 plus 6 plus 4 plus 1, so final answer is 6 4 10 plus 1 11, 6 plus 3 9, 6 plus 4 10, and that is 6 plus 6 12. So that will be the correct answer, that is y of n equal to, sorry this is not in the matrix, this is sequence, 11 9 10 and 12. Okay, so this is how we will calculate the matrix. So your assignment is, okay, your rotation मेथड में मेरा y ऑफ n का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट मीन्स वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, यू हैव टू शो द प्रोसीड्यूर। दिस इज योर टुडेज असाइनमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज overlap add method and overlap save method। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो, ठीक है, ये मत सोचना कि मे बी योर क्वेश्चन इज सिली, ठीक है, मे बी को सर विल थिंक दैट यू कांट अंडरस्टैंड, ये सब सोच को अलग रखो। यहाँ पे भी थोड़ा सा भी किसी को डाउट है, ठीक है, तो मुझे ये इन्फॉर्म करो, ठीक है, क्योंकि ये मेथड, ये जो दो मेथड, ओवरलैप सेव मेथड एंड ओवरलैप ऐड मेथड, दैट मेथड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वन इज ओवरलैप सेव मेथड। So that overlap save method is nothing but whenever there is a very long sequence is there, very long sequence is there, so to filtering out, ठीक है, वेरी लॉन्ग मेथड में क्या होगा, डेटा रिपीटेशन हो सकता है कि 3 सीक्वेंस के बाद अगेन द सीक्वेंस रिपीट्स इटसेल्फ एंड अप टू 11th रिपीटेशन माय एंटायर सिग्नल आई विल गेट।
सो ओवरलैप शेप क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी या रिपीटेशन ऑफ डेटा को कंप्लीटली बंद करता है. सो दैट इज नोन एज फिल्टरिंग. सो फिल्टरिंग मेथड में तुम्हारा एक फिल्टरिंग ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन सीक्वेंस में ये दो मेथड वेरी मच इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओवरलैप शेप मेथड एंड ओवरलैप ऐड मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will use the overlap shape method. So before that we will give some example, or we will take two sequences. So let it be, the first sequence is input signal x of n equal to, let it be 3 minus 1 0 1 3 2 0 1 2 1. ठीक है. सेकेंड सीक्वेंस इज इनपुट इम्पल्स सीक्वेंस, दैट इज h of n, दैट इज 1 1 1. सो देखो ये एक लॉन्ग सीक्वेंस है एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस मैट्रिक्स मेथड या सर्कुलर कन्वोल्यूशन में जो हम लोग सीक्वेंस ले रहे थे उसके मुकाबले x of n बहुत ही लॉन्ग सीक्वेंस है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, ठीक है, व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वन इज स्टेप्स. मैं इसको थोड़ा स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ रहा हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है. फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन में क्या है, देखो वहां पे क्या कर रहे थे, लेंथ को इक्वेट कर रहे थे किसके रेस्पेक्ट में, जो मेरा लॉन्ग सीक्वेंस है. दैट मींस एल का लेंथ पहले 5 था, दूसरे सीक्वेंस में एल का लेंथ 3 था, तो हम लोग 5 के रेस्पेक्ट में 3 को इक्वेट कर रहे थे कि 2 0 बैठा देते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, सिंस द सीक्वेंस इज वेरी लॉन्ग, ये तो तुम्हारा एलिमेंट कितना है, x1 xn का एलिमेंट कितना है, 3 3 6 3 9 10th एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स आते हैं. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई हैव टू डिवाइड द इनपुट सिग्नल इनटू ब्लॉक्स. ठीक है, इनटू ब्लॉक्स, आई हैव टू डिवाइड द इनपुट सिग्नल इनटू ब्लॉक्स. सो स्टेप 1, divide the input signals into blocks. Now यहां पे डिवीजन आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, और जहां पे डिवाइड है वहां पे एक क्वेश्चन आएगा, सर डिवीजन कैसे करेंगे, हाउ वी विल डिवाइड द एंटायर सीक्वेंस एंड ईच सीक्वेंस कितना ब्लॉक होना चाहिए. ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन सबके दिल में मन में आएगा. सो नाउ इसका भी एक प्रोसीड्यूर है. ठीक है. तो इसका प्रोसीड्यूर क्या है, सबसे छोटा जो सीक्वेंस है, यहाँ पे छोटा सीक्वेंस कौन सा है, h of n, that has length l1, l2 is 3 and l1 is 10. so now देखो 3 जो है सबसे छोटा सीक्वेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, what we will do, that is we will divide the input sequence in such a way that ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा. लास्ट पार्ट में जो है L2 का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ L2, दैट इज 3 एलिमेंट्स. फर्स्ट पार्ट में जो है लेंथ ऑफ L2 माइनस 1 जीरोस होगा. ठीक है. तो x1n. ठीक है. तो यहां पे अगर हम डिवाइड करेंगे x1n, दैट इज द ब्लॉक टेकन फ्रॉम दिस सीक्वेंस. सो यहां पे अब क्या होगा, कितना जीरो होगा शुरू में, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, L2 is the length of this hn, so 3 minus 1, that is 2 zeros will be there. 2 zeros will be there. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में क्या है, L2 का जितना लेंथ है उतना एलिमेंट हम लेंगे तुम्हारा x of n से. तो L2 का लेंथ कितना है, 3 है, तो I will take first 3 elements from xn, that is first 3 elements क्या है, 3 minus 1 0. यहां तक सबको समझ में आया, ध्यान से, हो सके तो एक बार शुरू से देख लो. ठीक है.
और उसको समझ लो। अगर कोई कहीं पे भी किसी का थोड़ा भी डाउट है, अगर 0.10001% भी डाउट है, टेल मी, आई विल रिपीट अगेन। दैट इज ओवरलैप शेप मेथड का ईच ब्लॉक दो पार्ट में भी डिवाइड होगा। पहला पार्ट क्या होगा, L2 दैट इज लेंथ ऑफ द सेकेंड सीक्वेंस और स्मॉलर सीक्वेंस -1 नंबर ऑफ जीरोस रहेगा। दैट मींस यहाँ पे h ऑफ n का लेंथ कितना है, 3 है। तो हाउ मेनी जीरोस विल बी एडेड at the starting of the in the first part of x1n, that is 3 minus 1 equal to 2. Two zeros will be added before the sequence will start, ठीक है। that means 0 0 will be in the first part. second part में क्या होगा, ब्लॉक का L2 का जितना लेंथ है that much length और that much sequence will be taken from the xn. तो xn का कितना सीक्वेंसेस है, h of n का कितना लेंथ है, 3, तो 3 सीक्वेंसेस विल बी टेकन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ x1n। यहां तक सबको समझ में आया? इफ यस रेज योर हैंड। सिर्फ एक को, बाकी होगा 4, बाकी 3 रहा। संगीता, तानिया, दीचिका, हाँ बोलो। बाकी तीनों का संगीता, समझ में आ गया ठीक है। तानिया, सर। समझ में आया? सर एक्चुअली बीच में ना नेटवर्क कनेक्ट मतलब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये वाला हम देख नहीं पाए हैं। रिपीट करना। दीचिका, सेकेंड, यस सर, यस सर। ठीक है। तो नाउ नेटवर्क ड्यू टू कनेक्ट डिस्कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, आई एम रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ पे दो सीक्वेंस दिया हुआ है। ओवरलैप शेप मेथड में क्या है, लॉन्ग सीक्वेंस को हम डिवाइड करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड सीक्वेंस, शॉर्टर सीक्वेंस। यहाँ पे h of n is the shorter one, so its length is 3. Now when we will divide the input signals, that means xn, that is long sequence, कैसे डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। दैट इज x1n का दो हिस्सा होगा। दैट इज फर्स्ट पार्ट विल कंसिस्ट number of zeros, that is L2 minus 1, that is length of the second shorter sequence minus 1 number of zeros। तो L2 किसका लेंथ है, h of n का लेंथ है। इसका लेंथ कितना है, 3, so 3 minus 1 zeros will be in the first part of the x1n। so how many zeros will be there, 3 minus 1, that is 2 zeros। सेकेंड पार्ट क्या है, h of n शॉर्टर सीक्वेंस का जो लेंथ है उतना ही एलिमेंट हम लॉन्ग सीक्वेंस से पिकअप करेंगे फॉर कैलकुलेट द फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द एंटायर सीक्वेंस। सो यहाँ पे L2 का लेंथ कितना है, शॉर्टर का लेंथ 3 है। सो 3 एलिमेंट आई विल पिक फ्रॉम द गिवन इनपुट सीक्वेंस और गिवन लॉन्गर सीक्वेंस, ठीक है। तो 3 elements, 3 minus 1 0, तो 3 minus 1 0 I will put, ठीक है। नेक्स्ट इज x2n। नाउ x2n क्या करेंगे, ये पहला सीक्वेंस के लिए है, ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस, ये याद रखना। स्टेप 2 सेकेंड सीक्वेंस हम निकालेंगे, सेकेंड सीक्वेंस दैट इज x2n। यहां पे भी दो पार्ट्स होगा, ठीक है, दो पार्ट्स, बस वी विल टेक इन डिफरेंट वे। दैट इज मेरा x1 जब निकालेंगे तभी मेरा ये फॉर्मूला और ये प्रोसेस एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में क्या होगा, देखो पहला जो पार्ट है इसमें कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स,
और थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट में 3 एलिमेंट्स है। तो x2 का पहला पार्ट में x1 का लास्ट 2 एलिमेंट्स विल बी एडेड, last 2 elements, that is -1 0, and then second part में x1 का कहां तक एलिमेंट हम लोग पिक किए थे, -3 1 0 तक। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 3 2, दैट मींस ये 3 एलिमेंट यहाँ पे ऐड होगा, 1 3 2, and it will be repeated unless and until your last elements will be 0। जब तक लास्ट एलिमेंट मेरा 0 नहीं होता किसी भी सीक्वेंस का, तब तक मेरा ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, नाउ स्टेप 2 में हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे x ऑफ 3 के लिए। x ऑफ 3 यहां पे भी 2 पार्ट होगा, पहला पार्ट 2 एलिमेंट रखेंगे एंड लास्ट पार्ट में 3 एलिमेंट रखेंगे। सो नाउ इसका पहला 2 एलिमेंट, इसका लास्ट 2 एलिमेंट्स, दैट इज 3 2, एंड रेस्ट सेकेंड पार्ट कहां होगा, यहां से मेरा खत्म हुआ था सीक्वेंस, तो नेक्स्ट 3 सीक्वेंसेस, दैट इज 0 1 2 0 1 2। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट x ऑफ 4, ये इसके ऊपर डिपेंड करके क्रिएशन होगा। सो टेल मी व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ x ऑफ 4। 1 2 गुड, वेरी गुड, 1 2, एंड आफ्टर 1 2 यू विल सी दैट यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट कितना है, 1 है। सो रिमेनिंग एलिमेंट हम पहले 1 लिखेंगे और सीक्वेंस को इक्वेट करने के लिए 0 पुट करेंगे। सो देखो लास्ट एलिमेंट 0 है, जो 0 सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, तो ये नाउ वी विल स्टॉप दिस और आगे नहीं बढ़ेंगे। लास्ट एलिमेंट अगर मेरा लास्ट सीक्वेंस का 0 आ गया तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एंड दैट 0, वेरी केयरफुली, दैट 0 शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, सो नाउ विल स्टॉप दिस। नाउ एक तुम लोगों का सवाल हो सकता है कि एग्जाम के टाइम ये प्रोसेस भूल भी जा सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस भूल जा सकते हो, कोई मैटर नहीं है। एग्जाम वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग इन एग्जामिनेशन सेंटर, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर माइंड, सो मे बी यू कैन फॉरगेट दिस मेथड। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, मैं शॉर्टकट डिवीजन क्या कर रहा हूं, शॉर्टकट डिवीजन, ऑल्टरनेट methods for creation the blocks। ठीक है, तो मेरा x of n क्या है, 3 -1 0 1 3 2 0 1 2 1। ठीक है, ये मेरा ऑल्टरनेट मेथड आई विल, एंड h of n क्या है, 1 1 1। ठीक है, सो नाउ क्या करेंगे, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक सेट पकड़ेंगे। ठीक है, एक एक ब्लॉक को पकड़ेंगे, लाइक x1n x2n x3n एंड x4n। देखते हैं कहां तक जाता है ये। ठीक है, सो ब्लॉक सेट का पार्ट क्या होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, पहला पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। सेम थिंग्स, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करो। सेकेंड पार्ट में क्या है, चाहे वो x1 का सेकेंड पार्ट हो, x2 x3 x4 का सेकेंड पार्ट हो, सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, मेरा x ऑफ n का सीक्वेंस डायरेक्टली बैठ रहा है, वहां कोई रोटेशन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो x ऑफ x1 2 3 4 का सेकेंड पार्ट में मैं सीक्वेंस यहां से डायरेक्ट पिक करूंगा। नाउ हाउ मच सीक्वेंस आई हैव टू पिक, दैट इज लेंथ ऑफ hn, that is 3. So second sequence में 3 elements from the input signal I will pick, that is 3
-1 0, that is 1 3 2. Next is next three. Next is next three elements 0 1 2. नाउ एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट 0 0 सेकेंड ब्लॉक को इक्वेट करेंगे, सेकेंड पार्ट को इक्वेट करेंगे। सब में 3 एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट होके खत्म हो गया और सीक्वेंस है नहीं, तो यहाँ पे 2 0 अगर हम पुट कराएंगे तो इक्वेट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कितना जीरो ऐड हुआ है, 2 एक्स्ट्रा जीरो इज एडेड, इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। नाउ इसका क्या होगा, रोटेशन होगा, 2 एलिमेंट्स करके रोटेशन होगा, दैट इज -1 0, अगेन 2 एलिमेंट्स 3 2, अगेन यहाँ का 2 एलिमेंट, लास्ट 2 एलिमेंट्स 1 2। ठीक है, सो ये हो गया, इजीली यू कैन क्रिएट द ब्लॉक, डिवाइड द ब्लॉक। समझ में आया सबको, शॉर्टकट मेथड? यस। ओके, सो नाउ वी विल डू द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। ओके, नाउ यहां पे देखो x1n, again I am writing the values 0 0 3 -1 0, x2n, that is -1 0 1 3 2, x3n 3 2 0 1 2, next x4n, that is 1 2 1 0 0, और एक मेरा क्या दिया है गेट डेटा h of n, that is 1 1 1। सो नाउ देखो सब में जो सबका जो सीक्वेंस है वो 5 लेंथ है, h of n का सीक्वेंस कितना है 3 है, तो इसको हम इक्वेट करेंगे बाय एडिंग 2 zeros। तो नाउ सबका जितना भी मेरा सीक्वेंस है सबका लेंथ इक्वेट हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। सो y of n, y1n equal to x1n circular convolution, that is the symbol of circular convolution, that is the symbol of circular convolution, x1n into convolution with hn, y2n, that is y1n convolution, circular convolution with h of n, y3n, that is sorry यहाँ पे x1 x2n, that is sorry again x3n circular convolution with h of n, and y4n, that is x4n circular convolution with hn. Now calculate the values. Calculate the values. Calculate the values. Okay. Using matrix method you can calculate the value. ठीक है, अभी टाइम लग जाएगा, 5-6 मिनट लग जाएगा, क्योंकि एक एक का सर्कुलर मेथड है। मैं सिर्फ कैलकुलेटेड, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, सो आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल चेक वेदर द वैल्यूज विल बी इक्वल और नॉट। ठीक है, सो 4 1 0 4 6 as well as 6 7 5 3 3, and that is 1 3 4 3 1। Okay, so this value you will get after do the circular convolution। ये circular convolution देख लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हो गया। ठीक है, तुम लोग ये क्रॉस वेरिफिकेशन करना। और यहाँ पे मेरा किसी एक का वैल्यू गलत है, मैं ये भी दे रहा हूँ, और गलत है इसीलिए मेरा आंसर गलत आएगा। तो योर आंसर, whatever the answer will be there, but process will be same।
मैं गलती इसीलिए जानबूझ के लिखा हूँ, गलत वैल्यू लिखा हूँ। कौन सा वैल्यू गलत है मैं नहीं बोलूंगा। गलत वैल्यू इसीलिए लिखा हूँ कि मुझे तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, प्रोसीड्यूर विल बी सेम, प्रोसीड्यूर देखना। ठीक है, मेरा सिर्फ वैल्यू गलत है, प्रोसीड्यूर गलत नहीं है। तो मैं कोई भी एक वैल्यू मेरा गलत पुट किया हूँ जानबूझ के, तो यू विल डू द क्रॉस वेरिफिकेशन एंड यू विल टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट विल बी द एक्चुअल आंसर। ठीक है, सो नाउ मैं अभी इस वैल्यू को पकड़ के ही मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्रोसेस सेम है। ये whenever you will tell me the answer, then I will put the exact value and you will find the actual answer. ठीक है, but procedure will be same. ठीक है, so now -1 0 3 2 2, that is the first y1, y2 का वैल्यू है 41046, y3 का वैल्यू है 65733, y4 का वैल्यू है 13431। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आई हैव टू calculate the exact value of y of n, because y of मुझे आंसर निकालना है y of n के रेस्पेक्ट में, नॉट इन y1n, y2n, y3n and y4n। सो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, राइट द ब्लॉक्स। फर्स्ट ब्लॉक इज 1 0 3 2 2। ठीक है, तो नेक्स्ट इज how many zeros will be added, that means L2 minus 1, that means 2। तो इन नेक्स्ट लाइन पहले दो को छोड़ के थर्ड एलिमेंट से हम दूसरा y2 का वैल्यू लिखेंगे। सो 4 1 0 4 6। फिर यहां पे भी सेम है, पहला दो, दैट मीन्स L2 minus 1, L2 minus 1 एलिमेंट को हम छोड़ देंगे, L2 minus 1। सो नेक्स्ट एलिमेंट क्या कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। तो 6 7 5 3 3, ये L2 minus 1 है। सो नाउ 5 से स्टार्ट होगा, 1 3 4 3 1। नाउ क्या करेंगे, ये जो दो ब्लॉक सेट है, हर एक सीक्वेंस का पहला दो ब्लॉक सेट जो है, ठीक है, ये जो दो ब्लॉक सेट है, ये जो ब्लॉक सेट है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, दैट इज डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, इसको भी डिस्कार्ड, इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। एंड जस्ट राइट द रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज एंड दैट विल बी द योर y of n। सो y of n का वैल्यू क्या होगा, 322 322 046 046 532 533 एंड 431 431। ठीक है, एक्चुअली वैल्यू गलत है लेकिन प्रोसीड्यूर सेम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जानबूझ के एक वैल्यू मैंने गलत किया है। you will check and tell me the exact answer. This is also your assignment। ठीक है, सो नाउ y of n क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, L-1 एलिमेंट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, हर एक सीक्वेंस का पहला L-1 एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, L2 - 1 एलिमेंट। सो L2 का वैल्यू 3 है, -1, दैट मींस 2 एलिमेंट्स को डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट जो मेरा सीक्वेंस बच रहा है, जो एलिमेंट बच रहा है, उसको लिख देंगे। नो एडिशन, no subtraction, no multiplication or no division, simply I will write the elements। ठीक है, तो 322 046 533 431 is the rest elements। so this is the value of yn using overlap save method। ठीक है, so मेथड सबको समझ में आया, ये मेथड, इसका सबसे मेजर कैलकुलेशन पार्ट है ये वाला पार्ट, and you have to do the calculation very carefully। यहाँ पे एक गलती मतलब तुम्हारा वैल्यू में चेंजेस आएगा, और वैल्यू में एक चेंजेस मतलब तुम्हारा एंटायर आंसर जो है, आंसर विल बी चेंज। ठीक है, सो यहां सबको समझ में आया ओवरलैप सेव मेथड।
overlap same method. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. now next is overlap add method. That is the last topic for today's session. That is overlap add method. Add method. क्या करेंगे मैं x of n सेम लेंगे ताकि दोनों के बीच में अंतर तुम लोगों को पता चले. ठीक है, दोनों के बीच में अंतर पता चले. नाउ यहां पे भी ब्लॉक सेट में डिवाइड होगा, बट यहां पे क्या होगा, ओवरलैप सेम मेथड में शुरू में ऐड हो रहा था, ओवरलैप ऐड मेथड में लास्ट ब्लॉक में जो है नंबर ऑफ L2 माइनस 1 0 ऐड होगा. सो यहाँ पे L1 का वैल्यू कितना है 5 सॉरी 3 3 6 3 9 1 10 10 वैल्यूज. L2 का वैल्यू कितना है 3. सो नंबर ऑफ जीरोस दैट इज x1n. यहाँ पे ये ब्लॉक सेट दो हिस्सों में डिवाइड होगा. लास्ट ब्लॉक लास्ट डिवीजन क्या होगा L2 माइनस 1 जीरोस. तो L2 का वैल्यू 3 है, माइनस 1 2 जीरोस विल बी एडेड एंड शुरू का जो 3 एलिमेंट है यहाँ पे बैठ जाएगा 0. दैट इज L2 एलिमेंट्स फ्रॉम x of n. तो L2 कितना है 3 है, तो 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द x of n. ओके, तो ध्यान से देखो. नाउ ओवरलैप सेम मेथड में क्या हो रहा था, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में अंतर था. पहला स्टेप जो है 0 का इंक्लूड हो रहा था. नेक्स्ट दूसरा जो स्टेप है पहले सीक्वेंस से ऊपर डिपेंड कर रहा था. तीसरा जो सीक्वेंस है सेकेंड सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था. चौथा जो सीक्वेंस है थर्ड सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था. ओवरलैप ऐड मेथड में ये है नहीं. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हमको पता चल गया पहला पार्ट में 3 एलिमेंट्स रहेगा, दूसरे पार्ट में L2 माइनस 1 जीरोस रहेगा. सो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी ब्लॉक सेट. नाउ x2n L2 एलिमेंट्स फ्रॉम xn, यहां 0 तक हुआ. नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स I will add. So 1 3 2. नाउ यहाँ पे सेकेंड पार्ट 2 जीरोस सबके लिए सेम. ठीक है, 1 2 3 हो गया. नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स क्या है 0 1 2 एंड ब्लॉक सेट 0 x4n. यहाँ पे क्या होगा, बाकी क्या रहा 1, बट यहाँ पे कितना एलिमेंट्स रहेगा L2 एलिमेंट्स. सो बाकी को हम 0 से फिलअप करेंगे और लास्ट में 2 जीरोस है. सो यहाँ का एक फायदा क्या है, ओवरलैप ऐड मेथड में तुम्हें कैलकुलेशन उतना नहीं करना है. ठीक है, तुम्हें सेकेंड पार्ट पता है क्या होगा. नाउ आई एम राइटिंग x1n इक्वल टू 3 माइनस 1 0 दैट इज 0 0. x2n that is 0 1 2 0 0. x3n that is sorry माइनस ये x2n होगा. ठीक है, x2n इक्वल टू 1 3 2 0 0 and x3n that is 0 1 2 0 0 and x4n that is 1 0 0 and लास्ट में 2 एलिमेंट 0 0. तो देखो हर एक का सेकेंड पार्ट इक्वल होगा. सो ये ओवरलैप ऐड मेथड इज वेरी मच इजी ब्लॉक सेट डिवाइड करने में. और एक एलिमेंट मेरे पास है h of n सीक्वेंस है दैट इज 1 1 1. सो नाउ आई विल इक्वेट द सीक्वेंस. ठीक है, इक्वेट द सीक्वेंस.
सो इक्वेट द सीक्वेंस हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 बैठा देंगे. ओके, नाउ I will calculate. So calculate कैसे होगा? सर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से. गुड, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से हम कैलकुलेट करेंगे. सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से. So same thing, y1n equal to x1n h of n. इसके बाद प्रोसीड्यूर सेम है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का. h of n y3n equal to x3n h of n y4n equal to x4n h of n. ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करना. मैं यहाँ पे भी एक टर्म गलत लिखा हूँ, ठीक है, तो यू हैव टू चेक. तो एक्चुअली तुम लोग का आज 3 असाइनमेंट है. ठीक है, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का मैं एक शॉर्टकट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. मुझे याद दे देना कि यहाँ पे सिंस बहुत सारा प्रोसीड्यूर हो रहा है, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में तुम लोग का टाइम लगेगा. चाहे वो मैट्रिक्स मेथड ले लो या कोई भी मेथड ले लो, वहां पे टाइम लगेगा. ठीक है, तो उसका मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज यहीं पे अगर हो जाए, 1 मिनट, मुझे 2 मिनट टाइम दो. मैं अगर देखूंगा मैं जो मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें तुम्हारा शॉर्टकट मेथड हो रहा है कि नहीं. अगर सक्सेसफुली हो गया देन मैं अभी बता रहा हूँ. उसके लिए मुझे 2 मिनट चाहिए. 2 मिनट चाहिए. यस सर, नॉर्मल मेथड में बहुत सर हाँ बोलो. सर नॉर्मल मेथड में बहुत लॉन्ग हो जा रहा है. पता है क्योंकि तुमको 4 प्रोसीड्यूर कंप्लीट करना है. 4 प्रोसीड्यूर यस सर, मतलब यस 4 सर, मैट्रिक्सेस. ठीक है, और तो बहुत टाइम चला जाता है. तो मुझे अगर तुम लोग 2 मिनट टाइम दोगे इस क्लास से, तो आई विल चेक वेदर माय prediction will be same or not. I am taking just 2 minutes. पहला सक्सेसफुली मैच कर गया. दूसरा देखते हैं. 1 3 2 0 0 1 3 2 0 0 1 3 2 0 0 बाकी सब 0. 1 4 6 5 2 6 2. ठीक है, ओके, डन. ठीक है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, तो ये सर हाँ बोलो. सर लीनियर कॉन्वोल्यूशन से कर रहा है क्या? नहीं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से मैं शॉर्टकट मेथड बता दे रहा हूँ. ठीक है, ये तुमको बुक में नहीं सर मिलेगा. एक हाँ बोलो. नो सर, एक आप सिग्नल सिस्टम पढ़ाए थे ना, तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन बताए थे, तो उससे भी हाँ, करने पे आंसर सेम ही आ रहा है. लीनियर कन्वोल्यूशन से आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे भी मैट्रिक्स क्रिएशन करना पड़ेगा तुमको. यस और नो?
वहां पे भी यस तो सर। मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स में जाना ही नहीं चाहता। तो मैं देखो y1 n, इसके लिए क्या करेंगे, x1n का वैल्यू कितना है, x1n का वैल्यू है 1, सर 3 - 1 0 0। एक मिनट, यहाँ का वैल्यू कितना है, x1n, ये 3 - 1, ठीक है। तो 3 2 2 मैं एक बार देख ले रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ मैं वैल्यू लूंगा x1n, x1 इज n इज 3 - 1 0 0 0 0 0, convolution, circular convolution is 1 1 1 0 0। तो मैं ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन करूंगा, देखो कितना मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 मल्टीप्लीकेशन होगा, बिकॉज 3 का वैल्यू है, बाकी 2 का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो पहला एलिमेंट, पहला एक रो लूंगा जिसका वैल्यू होगा 3 - 1 0 0 0। अगर यहाँ पे 2 रहता तो क्या होता, 6 - 2 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, 3 - 1 0 0 0। नेक्स्ट में क्या करूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 को अगेन मल्टीप्लाई करूंगा, सो एक स्टेप छोड़ के 3 - 1 0 0, ठीक है। 4, ये लास्ट पोर्शन, ये फर्स्ट का जितना एलिमेंट होगा उतना ही एलिमेंट हम जीरो करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन इज 1, अगेन मैं एक स्टेप छोड़ के यहां से चालू करूंगा, तो 3 - 1 0, ठीक है। सो नाउ ऐड कर दूंगा, सो 3 2 2 - 1 0 आ गया, आ गया वैल्यू, यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट y1 y2n, सो y2 का वैल्यू है 1 3 2 0 0, मल्टीप्लिकेशन विथ 1 1 1 0 0। सो यहाँ पे भी सेम होगा, सेम प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 से पहले रो को मल्टीप्लाई करो, 1 3 2 0 0। नाउ सेकेंड, ये 1 से फिर रो को मल्टीप्लाई करो, एक स्टेप छोड़ दो, 1 3 2 0। फिर एक इस 1 से एक स्टेप छोड़ के मल्टीप्लाई करो, 1 3 2, बस और नहीं, क्योंकि लास्ट यहाँ कंप्लीट होगा। नाउ ऐड करो 1 4 6 5 2। एक मिनट रुको, अच्छा ठीक है, आई नीड 2 मिनट्स ब्रेक फ्रॉम योर क्लास, ठीक है, 2 मिनट का मुझे ब्रेक दो। हेलो कैलकुलेटेड, हेलो, वैल्यू कैलकुलेटेड हुआ, नो हेलो, सर। नो सर। तो देखो कैलकुलेट करो। सर y3 और y4 का वैल्यू लिखे ही नहीं थे इसलिए। हाँ तो y3 y4 ये लो, लिखो।
अच्छा, ये मेथड बुक में नहीं मिलेगा, बुक क्या कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी हम मैं ये करके देख रहा था। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। और ये मेथड कभी भी फ्लैश मत करना, एग्जाम में भी करना तो इसको रफ में करना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट तुम्हारा मेथड नहीं है, ये ट्रिक है। वैल्यू आया वाई3 वाई4? यस सर, सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू है। तो कंक्लूजन क्या है, मेरे डेटा में कोई गलती नहीं है। ठीक है, और इससे तुम लोग का एक फायदा क्या है, क्रॉस चेक भी तुम लोग करोगे नहीं ध्यान से। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग एक बार असाइनमेंट में जो है करके देख लेना, पहला जो प्रॉब्लम दिया हूँ ओवरलैप सेम मेथड में, ठीक है, वो करके देख लेना। नाउ मेरा वैल्यू आ गया, ये वैल्यू मुझे मिल गया। नाउ सेम एज तुम्हारा क्या हो रहा है, ओवरलैप सेम मेथड के तरह ही अब मैं इस डेटा को लिखूंगा। ठीक है, तो पहले मैं सिंस स्लाइड ये चेंज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से सभी डेटा को लिख लूं। y1n is 3 2 2 minus 1 0, y2n equal to 1 4 6 5 2, y3n 0 3 3 2, y4n 1 1 1 0 0। ये आया सबका? ठीक है, नाउ सेम एज ओवरलैप सेम मेथड में मैं लिखूंगा, दैट इज पहले लिख दूंगा y1n का 3 2 2 minus 1 0। नाउ सेम एज मैं एक मिनट इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, लगेगा। थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसको नीचे ही लिख देता हूँ क्योंकि जगह लगेगा मेरे राइट हैंड साइड में। नाउ ये जो वैल्यू है, ओवरलैप सेव में क्या कर रहे थे, शुरू का ब्लॉक हम छोड़ रहे थे, कितना ब्लॉक, L2 माइनस 1 ब्लॉक छोड़ रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट L2 माइनस 1 ब्लॉक हम कंसीडर करेंगे। तो L2 का लेंथ कितना है, 3 है, तो L2 माइनस 1 दैट मीन्स 3 माइनस 1 2, लास्ट दो ब्लॉक को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज L2 माइनस 1। सो यहाँ पे टू ब्लॉक्स के नीचे से दूसरा सीक्वेंस लिखना चालू करेंगे, दैट इज 1 4 6 5 2। अगेन इसका लास्ट दो ब्लॉक के नीचे से हम नेक्स्ट सीक्वेंस लिखना चालू करेंगे, दैट इज 0 1 3 3 2। फिर इसका नीचे से हम सेकेंड सीक्वेंस लिखना चालू करेंगे। ओके, नाउ क्या करेंगे, अब वहां पे क्या हो रहा था, डिस्कार्ड हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो ब्लॉक सेट है इसको हम ऐड करेंगे, दैट इज ऐड। अगेन यहाँ पे जो दो ब्लॉक सेट है इसको ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे जो ब्लॉक सेट है इसको ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ आई विल राइट द इक्वेशन 3 2 2 दैट इज 0 4। ठीक है, इसको इससे ऐड करेंगे और इसको इससे ऐड करेंगे। नाउ 6 5 3 3 4 3 1, ये दो 0 0 लास्ट में हम ऐड किए थे, इसको डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्ड, क्योंकि ये दो 0 हम लोग लिए थे बाहर से, नाउ यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेट करने के लिए हम बाहर से लिए थे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे 0 0 को। ठीक है, सो नाउ माय इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस,
y of n. So now overlap same method में देखो क्या हो रहा है. Overlap same method 322046533431 यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रहा है. ठीक है, तो ओवरलैप सेव मेथड और ओवरलैप ऐड मेथड में एंड ऑफ द डे y ऑफ n का वैल्यू जो है मेरा सेम रहेगा. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द लीनियर कॉन्वोल्यूशन. ठीक है, दैट मीन्स लीनियर कॉन्वोल्यूशन, दैट मीन्स कॉन्वोल्यूशन वैल्यू, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज देके मैं y ऑफ n निकाल रहा हूँ. ठीक है, उसका वैल्यू मेरा जो है ब्लॉक सेट में डिवाइड करूंगा ओवरलैप सेव मेथड एंड ओवरलैप ऐड मेथड, एंड आफ्टर ऑल द ऑल वैल्यूज विल बी सेम. ठीक है, सो दैट इज द प्रोसीजर. ओवरलैप सेव मेथड एंड ओवरलैप ऐड मेथड सेम रहेगा, बट प्रोसीजर में थोड़ा इधर उधर है. ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, मेरा पहला जो प्रॉब्लम है ओवरलैप सेव मेथड, वो प्रॉब्लम भी सही है, कोई गलत डेटा नहीं है. ठीक है, सो बट अगेन आई एम सेइंग जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन है वो एग्जैक्ट सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करके देखो. उसके बाद जो मैं ट्रिक बोला हूँ ये अनऑफिशियल ट्रिक है. ये ट्रिक को कभी मेन कॉपी में जहां पे सॉल्व करोगे वहां पे मत लिखना. हो सके तो ये लिख लेना डायरेक्ट, यहाँ पे नंबर आएगा, लेकिन जैसे ही ये लिखोगे ना एग्जामिनर विल बी कंफ्यूज, क्योंकि ये ऑफिशियल कोई भी मेथड नहीं है, ये एक छोटा सा ट्रिक है. ठीक है, सो नाउ your answer will be same. So that is the overlap save method and overlap add method. Difference between procedure, difference between overlap save method and overlap add method. And overlap save and overlap add method is calculated or is applied for long sequence. So यहाँ पे देखो sequence long है, so I will add this. And until and unless क्वेश्चन में अगर तुम्हारा मेंशन नहीं किया होगा कि using overlap save method and overlap add method find out the convolution, that is then you will not do that kind of procedure. ठीक है, एक्चुअली y of n जो है, y of n जो हम लोग निकाल रहे हैं वो एक्चुअली है x of n convolution of h of n, linear convolution. ठीक है, ये linear convolution करके देखना सेम रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ DFT. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. आज का सेशन से किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. Okay, so I can conclude the class. Can I conclude the class? Yes, sir. Okay, so